Hi guys, so we'll be starting with lesson 22, the debt recovery and SURFASI. Now, debt recovery is one part and one act, that is the RDB Act, Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions, and the second one is your SURFASI Act. So the chapter is divided in two parts. In this video, we'll be doing the first part, that is the debt recoveries in India. Now, when I talk about debt recovery in India, we've seen that if there is an insolvency of a company, then the matter goes before NCLT, and if there is an appeal, it will go to NCLAT, and then the appeal will lie to the Supreme Court. The debt recovery that we are doing, the RDB Act, we are concerned with this part today. That is, whenever there is an insolvency of a firm or an individual, okay, let's say if I have taken a personal loan and I am unable to pay, then the banks will try to recover their money from me. I am not a body corporate, I am not a company, I am an individual, or it could be a partnership firm. So whenever that happens, the appeal lies from the banks will go. So let's say if this is an individual, okay, this individual has taken a loan and the bank will try to recover this loan. Now obviously the bank will need to go to a court. So the bank will go to the DRT, Debt Recovery Tribunal. If there is an appeal, it will lie to the DRAT, and then in the end it will lie to the Supreme Court, right? So when there is a insolvency of an individual or a partnership firm, that is an unincorporated entity, everything goes to DRT and then so on. Let's see. Now when I talk about DRT also, so there must be some background of this DRT coming. Let's see the objective of the act. So a special tribunal was constituted, DRT, Debt Recovery Tribunal. It is under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions, 1993, more commonly known as RDB Act, RDB Act. What is RDB Act? It's recovery of debts due to banks and financial institutions. That is, you owe the banks and financial institutions money, so the banks will go to a tribunal, a specific tribunal called as DRT. Now this tribunal was made for speedy recovery or for the speedy recovery. Initially there was matters used to go in the civil court. So because of that, it was a long drawn process, so they wanted to make a specific created for speedy recovery of debts. It was stated that the matter should be resolved. DRT should dispose of the matter within 180 days. Now let's see, this entire thing is made for banks, where the banks can recover their debt. Okay, so this is all for debt recovery. Let's see. So we've seen the adjudicating authority, that is the court which will deal with the insolvency of individuals and partnership firms, is first DRT. Then if there is an appeal, it will go to DRAT, then it will lie to the Supreme Court. Now we are trying to understand the background ki ye act kyun aaya, DRT kyun banaya, and so on. First of all, this entire act was passed under the chairmanship of Shri T. Tiwari. Now what was it? Basically, banks were facing numerous difficulties and hindrances to recover their loans. Okay. Initially, the matter used to go in civil courts, which were already overburdened. So they thought they should make a specific tribunal dealing only with recovery of debts. That is called as a Debt Recovery Tribunal. As a result, there was a dire need to
draft an appropriate mechanism where they could manage to recover their stuck up dues. Keeping the view of the need of the hour in 1989, a committee was created which examined and highlighted the legal aspects, and as a remedial measure they have suggested that a specific tribunal be created for recovery of the dues in a summary manner. So let's see DRT जो बना क्या है ये. तो DRT एक ट्राइब्यूनल है, रिकवरी करती है जब भी बैंक्स को रिकवर करना है इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स के पास से, वो लोग DRT में जाएंगे. वी विल सी फर्स्ट DRT में होता क्या. आज सोचो मैं DRT में अपियर कर रहा हूँ, तो DRT में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा लाइक द जज. ओके, they have given his tenure and the maximum age that the presiding officer can be. They've also appointed one registrar to take care of the administrative matters. Administrative matters मतलब matter where will the application be given. So एक registry होगी जिधर जाके तुम submit कर सकते हो अपना application, जो भी अपने forms देने. तो कभी भी कोर्ट के अंदर एक अपना front desk होगा जिधर applications receive होते हैं, एंड देन तुमको फिर वहाँ पे डेट्स मिलती है. DRT विल हैव टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन. व्हेन आई से टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन मतलब बहुत सारे DRTs होंगे. अब यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ तो तुम ढूंढोगे कौन सी DRT वहाँ पे लोकेट होती है और नियरेस्ट DRT के पास में तुमको जाना है. सो इन इंडिया देर आर अराउंड 39 DRTs. 39 DRTs एंड 5 DRATs. तो तुम फाइंड आउट करोगे कौन सी DRT के ऊपर जूरिसडिक्शन है, एरिया में कौन सा आता है, एंड देन यू विल गो देयर. नाउ द थिंग इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेट दैट इज शुड बी इन्वॉल्व इज 20 लाख रुपीज. ये पहले 10 लाख था, अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 20 लाख का अगर डिफॉल्ट हुआ डेट अमाउंट, डेट ड्यू, तो ये उनका पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन है. पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मनी. दैट मैटर शुड बी मिनिमम 20 लाख. ऐसा नहीं तुम 5 लाख का मैटर कैन नॉट गो अप इन DRT. मिनिमम द डेट ड्यू इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट शुड बी 20 lakhs, then the matter can go up in DRT. Let's see. अब DRAT के बारे में. So they have said that if any person is unhappy with DRT, they can go to DRAT. Now timeline they've given 45 days, then now they have reduced it to 30 days. There also there will be a chairperson or a presiding officer. There are 5 DRATs and 33 DRATs. Now this is the entire act. The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993. सबसे पहले इसमें देखेंगे, छोटा सा एक्ट है, पहले देखते हैं टोटल कितने सेक्शंस है उसमें. ठीक है, ये सारा सेक्शंस है. कितने सेक्शंस दिख रहे हैं तुमको? 37 सेक्शंस है. उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है. वील बी गोइंग थ्रू देम. ओके, तो यहाँ पे DRT चालू हो रहा है. सबसे पहले DRT में बात करेंगे कि ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा. सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. सेकंड, पेक्यूनरी एप्लीकेशन, कम से कम 20 लाख का मैटर होना चाहिए तब जाके DRT के अंदर मैटर जा सकता है. अब आता है कि DRT और DRAT बनाएगा कौन? हु विल सेट अप कॉन्स्टिट्यूट द DRTs? विच गवर्नमेंट? तुम्हें क्या लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट? सो दिस इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन. सेंट्रल लेजिस्लेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है. तो DRTs भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. और DRAT भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अब फर्स्ट फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 7 नोटिस करोगे, इट इज टॉकिंग अबाउट DRT ओनली. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ DRT. सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश DRT. फिर DRT के अंदर कौन कौन होगा? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, रजिस्ट्री एक हो गया, एक रजिस्ट्रार होगा जिसमें सारे एप्लीकेशन सब जो डेटा हैंडलिंग करेंगे, जिनके पास में ऑफिस जैसी होती है, पेपर होता है, पेटिशन कलेक्ट करना है, बताना है, तो वो सब एक होगा. और एक तुम्हारा रिकवरी ऑफिसर होगा.
रिकवरी ऑफिसर क्या होगा, कल उठ के अगर ऑर्डर पास हो गया कि भाई आप ये इंडिविजुअल को पैसे देने हैं, तो रिकवरी ऑफिसर को बोलेंगे जाओ इसके पास से जो भी इसका सामान है जब्त करो, बेचो और सारे लोगों को रीपे कर दो. ओके, सो एक रिकवरी ऑफिसर, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल. फिर लिखा है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. जो ऑफिसर बैठेगा, द जज, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज क्या होगी, उसके टेन्योर क्या है, टर्म ऑफ द ऑफिस. और फिर स्टाफ, ये जनरल स्टाफ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. वैसे ही ये भी एक ट्राइब्यूनल है, तो डीआरटी भी एक ट्राइब्यूनल है, उसके बारे में भी सेम पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपीलेट अथॉरिटी, टर्म ऑफ ऑफिस एंड स्टाफ. देन डायरेक्टली they are saying section 17 talks about jurisdiction, that the tribunal will have jurisdiction whenever there is a recovery. We've seen also in IBC part 3 deals with insolvency of individuals and partnership firm. All the matters go to DRT और ये उसका act है, DRT act. Okay. Now section 19, you can mark it as important. When we do from the module we'll see it. 19 talks about application, कि अभी मुझे एक petition डालना है DRT में, तो DRT में क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या रिलीफ्स मांग सकता हो. ओके, वो पूरा पेटिशन के डिटेल्स देंगे, कौन जॉइंट पेटिशन फाइल कर सकते हैं या नहीं. अगर कोई खुश नहीं है DRT से तो वो अपील जा सकता है इन द वेरी नेक्स्ट सेक्शन. तो 19-20 यू नीड टू नो. ओके, 20 इज द अपीलेट अथॉरिटी. जब भी तुम अपील में जाओगे तो बोल रहे कि आपको एक छोटा अमाउंट, कम से कम 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, डीआरटी ने तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया कि तुमको 50 लाख भरना ही है, तो तुम सोच रहे हो कि ये गलत ऑर्डर है, आई एम अग्री विद द डिसीजन, यू वांट टू गो इन अपील. तो जब तुम अपील में जाओगे टू DRAT, तुमको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, मिनिमम 50%. इफ द DRAT, द अपीलेट अथॉरिटी, फील्स कि यार बहुत ज़्यादा बर्डनिंग होगा, तो दे कैन रिड्यूस इट टू मिनिमम 25%. मतलब 25% तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर कोई बंदे के अगेंस्ट ऑर्डर चला गया है तो उसके पास से कैसे कैसे हम लोग पैसे रिकवर करेंगे. अगर तुमने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे, तो बैंक कैसे तुम्हारे पास से निकालेगी, उसका टेक्निक दिया है, मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ मनी. अब ये लोग एक सेक्शन 29 को भी टच करते हैं. 29 में क्या बोल रहा है कि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई. और इनकम टैक्स अथॉरिटी कैसे रिकवरी करती है, वो शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में दिया हुआ है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रेड विथ इनकम टैक्स रूल्स 1962. तो जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिकवर करती है, वैसे ही DRT या DRAT के जो रिकवरी ऑफिसर्स है वो भी सेम मेथड फॉलो करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज. ओके, एंड इफ एनीवन इज अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द रिकवरी ऑफिसर्स एनी एक्ट, दे कैन ऑल्सो गो इन अपील टू DRT. ओके, ये सब दिया है. और सेक्शन 34 इंपॉर्टेंट है, एक्ट टू हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट. मतलब क्या, एक बार मैटर DRT के पास चला गया, it is a specific tribunal which will deal with debt recovery for firms and individuals. तब मैटर और कोई भी कोर्ट नहीं उठा सकती है. ऑल द सिविल कोर्ट्स आर बार्ड. कोई भी दूसरे मैटर है विल हैव नो इफेक्ट. अगर कुछ कॉन्ट्ररी भी लिखा है कोई एक्ट के अंदर, सो DRT एक्ट विल प्रिवेल. ओके, दैट इज व्हाट इट इज गिवन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स. डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. Let's see. Okay, so debt recovery. Let's see. सबसे पहले एक्ट का नाम क्या है, काफी बड़ा एक्ट का नाम है. एक्ट का नाम है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर लायबल टू बी पेड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्ट 1993. दिस इज द नेम ऑफ द एक्ट. शॉर्ट फॉर्म RDB एक्ट. अब ये एक्ट क्यों बना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट? ऑब्जेक्ट इज, दिस एक्ट इज मेड विद अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्राइब्यूनल्स
like DRT and DRAT for expeditious adjudication and recovery of debts. For expeditious means speedy adjudication for as soon as far as the matter gets disposed of in court, and recovery of debts due to banks and financial institutions, insolvency and resolution and bankruptcy of individual and partnership firms. This is the object of the act. It extends to whole of India excluding the state of Jammu and Kashmir, and it has come into force on 24th June 1993. Again, इसका मैंने बोला था कि पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन मतलब मैटर कितना होना चाहिए टू गो इन DRT. सो दिस कोड शैल नॉट अप्लाई वेदर डेट ड्यू इज लेस देन 20 लाख रुपीज. तो कम से कम 20 लाख का तो होना ही चाहिए मैटर और मोर, देन ओनली मैटर कैन गो इन DRT. अदरवाइज इट्स टू लेस, गो इन नॉर्मल सिविल कोर्ट्स. ओके, अब ये जो पूरा एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल्स बनाई है, जैसे हमारे पास कंज्यूमर मैटर्स डील करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट होती है, वैसे ही डेट रिकवरी करने के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाई है कॉल्ड एज DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स. नाउ टोटल इंडिया में कितनी DRTs एंड DRATs हैं? सो देर आर अ टोटल ऑफ 39 DRTs एंड 5 DRATs ऑल ओवर द कंट्री. हर DRT के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा. सो एवरी ट्राइब्यूनल इज प्रिसाइडेड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अब वो लोग देंगे उसके क्वालिफिकेशन, उसका टेन्योर जो आगे आएगा. नाउ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नाउ सेक्शन 2, दिस ऑल यू ऑल कैन रीड. इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसके ऊपर सिचुएशनल क्वेश्चन भी बना सकते हैं? अभी मैंने बात किया था कितना अमाउंट का मिनिमम होना चाहिए DRT में जाने के लिए, 20 लाख रुपीज का डेट. ठीक है, तो अभी सिचुएशनल क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि भाई 18 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 18 लाख का था एंड इंटरेस्ट अमाउंट वेंट अप टू 3 lakhs. ये इंटरेस्ट चला गया 3 lakhs, तो टोटल डेट अमाउंट कितना है? 21 lakhs. Now you tell me, can this matter be taken up in DRT? So will we see at the principal amount or the amount due? That is principal plus interest. So answer is principal plus interest, because debt के definition में देखो, a debt means any liability inclusive of interest. And is it necessary it should be secured or unsecured? Doesn't matter. Whether it be secured or unsecured, amount should be more than 20 lakhs. Okay, then comes establishment of tribunal. जैसे मैंने देखा था यहाँ पे I showed you first section 3 to section 7 they will talk about DRT, its establishment, composition, qualification, term and staff. So let's see, you can quickly go, it's not that important. Now who shall set up DRTs? So central government will set up DRT. अब वो अपना जूरिसडिक्शन के अंदर सेटअप कर सकते हैं कि IBC के अंदर से भी जो मैटर्स आते हैं पार्ट 3 के अंदर वो DRT में जाते हैं, बिकॉज आर डील्स विद इंडिविजुअल्स. तो ये लोग ने 5 DRATs कौन से हैं और 39 DRTs कौन से, वो उनके नाम दिए, यू डोंट नीड टू नो. सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल. आई टोल्ड यू ऑल, वो ट्राइब्यूनल मतलब ये कोर्ट के अंदर कौन बैठा होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, अब हम लोग ने देखा था कि कॉम्पोजिशन के बाद में क्या था? एस्टैब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉम्पोजिशन इज ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्वालिफिकेशन ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, और उसका टर्म क्या दिया है? ही शुड होल्ड अ टर्म ऑफ 5 years and no person shall hold the office as a presiding officer if he has attained the age of 65 years. तो 65 years के बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, he cannot be there. और सेक्शन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बंदा है जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, वो है विथ रिकवरी ऑफिसर. सो आई हैव पर्सनली ऑल्सो डेल्ट विद दिस, वेयर वन ऑफ द इंडिविजुअल्स वर देयर, he had taken a personal loan
Okay, he was an individual taken a business loan. He was a proprietary firm, could not repay small amount. Okay, and ऑर्डर आ गया, रिकवरी ऑफिसर उसके पीछे थे. मैं तुमको बताऊंगा रिकवरी कैसे करते हैं और रिकवरी कैसे ब्लॉक करते हैं, दोनों ही चीजें आगे देखते हैं. तो ये रिकवरी ऑफिसर्स रहते हैं जो हमारी क्लाइंट्स के एनिमीज होते हैं. दे ट्राई टू सेल ऑफ एवरीथिंग रैंडमली. तो हम भी क्या कर सकते हैं, वील सी, डिपेंडिंग ऑन विच साइड आर यू देयर. मूविंग फॉरवर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल. तो यहाँ पे सेक्शन 7 खत्म हो गया. तो वैसे ही सेक्शन 8 to 12 दे विल टॉक इन द सेम ऑर्डर अबाउट DRAT कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेटअप करेगी. इसके भी कॉम्पोजिशन में वी विल हैव अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या यहाँ पे इसका नाम क्या है, चेयरपर्सन इन DRAT. अब वो जैसे डिस्ट्रिक्ट जज था, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज और विल बी अ मेंबर ऑफ Indian Legal Services and held a post of grade 1 for at least 3 years, or he has held a presiding officer of the DRT for at least 3 years. तब जाके वो चेयरपर्सन ऑफ DRAT बन सकता है. ओके, देन दे हैव टेल 5 years, सेम टेन्योर 5 years के लिए, और मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, यहाँ पे लिखा है 70 years. After we are done with that, so if you see section 12 खत्म हो गया DRAT के बारे में, then directly they are coming to this other part, that is the jurisdiction of the tribunal, power of the chairperson and bar of jurisdiction. तो jurisdiction of tribunal ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं दिया है कि तुम्हारे विसिनिटी के अंदर जो मैटर क्लोजेस्ट DRT है, कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट होता है तो तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट कोर्ट जो होगी उसके पास में तुम जाओगे. So that will have jurisdiction. So let's see how they have presented it. So a tribunal shall exercise the jurisdiction to entertain and decide applications from bank and financial institutions for recovery of debts due to banks and financial institutions. So DRT shall exercise the jurisdiction, shall exercise the powers to decide applications received from banks where banks are coming and saying हमारा पैसा इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया. Okay, they shall also decide an applications under part 3 of IBC. Part 3 of IBC talks about insolvency of individuals. Okay, now एक जैसे हम लोग ने DRT रखा, वैसे ही DRAT के पास में पावर होगा टू एंटरटेन अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ DRT. अब बात करें कि ये appellate authority shall entertain appeals against the order made by the adjudicating authority under part 3 of IBC. Adjudicating authority under the part 3 of IBC is nothing but DRT. Now coming to section 17A, power of the chairperson. अब chairperson के पास में generic है, I'll tell you when I come to anything important. The chairperson of a tribunal shall exercise general power of superintendence over the tribunals. तुम ही देखो, chairperson है appellate authority का, he will supervise, superintendents will be there over all the other tribunals. The chairperson shall direct the tribunals to furnish such information with respect to the pending cases. He can tell the DRTs के कितने pending cases है तुम्हारे पास में, बताओ मेरे को. He can convene meetings of presiding officers of tribunals periodically to review their performance. जितने भी DRT के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उसको ये बुला सकता है चेयरपर्सन ऑफ DRAT. तो अपीलेट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नीचे की कोर्ट्स को बुलाएगा और बोलेगा भाई क्या व्हाट कितने पेंडिंग केस है, एंड ही विल ट्राई टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट मिसबिहेवियर भी है तो ही विल हियर द एप्लीकेशन. ओके, और वो चाहे चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल shall transfer any matter from one tribunal to another. So we are seeing this. Now we are coming to section 18, ये वाला bar of jurisdiction. अब एक बार कॉमन सेंस से DRT बना दिया, RDB एक्ट बना दिया, तो और कोई कोर्ट में मैटर जाएगा ही नहीं. दिस इज अ स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल, लाइक फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोर्ट्स तो बना दिया है, फैमिली कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स, तो दीज आर डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स, उधर ही चलना चाहिए.
वैसे ही डीआरटी एक बार बना दिया तो देन नो अदर कोर्ट्स विल हैव jurisdiction to entertain these matters except High Court and Supreme Court, which are dealing with under writ petition. So let's see. Bar of jurisdiction. No court shall have any jurisdiction or power or authority except the High Court and Supreme Court exercising the writ petitions under Article 226 and 227. So writ petitions are there and power of superintendents are there. ओके एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का अगर है तो वो लोग के लिए एक अलग एक्ट बनाए, दे कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट. सो प्रोवाइडेड दैट एनी प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज टू एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो दिस अ कोऑपरेटिव बैंक, पेंडिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंटिन्यूड in this section after such commencement apply to such proceedings. So not important. Now coming to an important section, we're talking of DRT. See, this is, now we're talking of section, this you need to know by heart. All these sections you need to know by heart. Section 19, 20, 21. Now है क्या इसमें? आज अगर तुम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, मैं बोरोवर हूँ. So let's take an example. So I'm saying that I am the borrower और borrower ने लोन लिया from a bank. अब पहले अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं पूछूंगा कि भाई बोरोवर कौन है, इंडिविजुअल है कि फर्म है. तो अगर इंडिविजुअल और फर्म है तो मैटर फिर किधर जाएगा? इफ इट इज अ इंडिविजुअल और अ फर्म, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि मैटर सीधा डीआरटी के पास में जाएगा. अगर मुझे पता चला बोरोवर कंपनी है तो बोलने का एनसीएलटी मैटर जाएगा, राइट. सो लेट्स सी, बोरोवर है और बैंक अपना है लेंडर. सिंपल. बोरोवर का दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? ही इज द डेटर. लेंडर का दूसरा नाम ही इज द क्रेडिटर. तो बैंक ने दिए पैसे और इसने दिया धोखा. डिड नॉट पे, लाइक जो करना है कर ले, देख लेंगे. सो देन द बैंक इज लाइक, नाउ डू यू डू? सो बैंक्स हैव टू गो टू अ कोर्ट. बैंक्स विल हैव टू गो टू कोर्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. सिंपल. Banks will run to the court, that court का नाम is specific court to deal with this matter, DRT. अब DRT के अंदर जब बैंक जाएगी तो पेटिशन लेके जाएगी, एप्लीकेशन लेके जाएगी. ये एप्लीकेशन होगा अपना सेक्शन 19 के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है. सेक्शन 19 के अंदर एप्लीकेशन इन DRT. एप्लीकेशन, सी योर एप्लीकेशन टू DRT. अब कॉमन सेंस है कि क्या क्या तुम करोगे एप्लीकेशन के अंदर. सबसे पहली चीज यहां पे दिख रही है, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा. शैल मेक एन एप्लीकेशन. तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि तुम राइट जूरिसडिक्शन में पहुंचो. यू शुड गो टू द करेक्ट जूरिसडिक्शन. तो आई हैव टू फर्स्ट फाइंड कि मैं whether I am appearing before the right DRT or no. So jurisdiction मेरे को decide करना पड़ेगा. Jurisdiction. Second, तो jurisdiction is always where the defendant is residing, where the defendant normally resides, where the debts are outstanding, where we are maintaining an account in which the default has been done, where there are more than one defendant, then where they work or carry on business, or where the cause of action arose wholly or in part. तो उस DRT के हम लोग केस करेंगे जिधर ये सारी चीज़ें हैं. अब वो लोग बोल रहे हैं अगर तुम चाहो तो उसको एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं. नाउ इट्स लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग सेक्शन. आई जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स. तो ये दिख रहा है यहाँ पे. फर्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन दोगे इन द राइट जूरिसडिक्शन. फिर क्या होगा?
फिर एप्लीकेशन के बाद में where the bank has to recover the debt from any person and the same person and against the same person another bank is also required to recover the money. There are more creditors, so they might file a joint application दे सकते हैं वो लोग. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है jurisdiction, joint application दे सकते हैं. joint application में क्या होगा कि like if we have seen there is consortium financing, group financing, all of them can join and file the case against the same person. अब क्या क्या तुम accompany करोगे? the necessary documents shall be accompanied with all this, the fees and everything. Every applicant shall state the particulars of debt, the properties that were secured to him. Okay, if the debts are settled before the hearing, सोचो कि मैंने केस जैसे फाइल किया, अभी तक हियरिंग हुई नहीं, बट बंदे ने रीपे कर दिया, द रीपेमेंट हैज बीन डन, सो देन आई कैन आस्क फॉर रिफंड ऑफ द फीस. रिफंड और फीस के बारे में बात कर सकता हूँ कभी. इफ एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर द DRT एंड द डेट्स आर सेटल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग, मैटर हियर हुआ उसके पहले ही पे कर दिया, तो आई विल टेल द कोर्ट कि बॉस जो फीस दिया था आपकी जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे को रिफंड कर दो. यू कैन अप्लाई फॉर इट. नेक्स्ट, ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द ट्राइब्यूनल विल इशू अ समन्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अ समन्स विल बी इशूड विद द फॉलोइंग डायरेक्शंस टू द डिफेंडेंट. अब आता है नेक्स्ट, एप्लीकेशन तो हमने दे दिया, अब आएगा दूसरी बात, कोर्ट समन करेगी, ऑपोजिट पार्टी को एक समन्स जाएगा telling him that you come, show cause notice why we should not recover this money from you. Summons will be given. So let's see. To show cause within 30 days why the relief paid should not be given. Now, the defendant on service of the summons shall not transfer, lease, assign except in the ordinary course of business any of the assets. तो जैसे समन्स दिया तो उसके ऊपर एक इंजंक्शन लग सकता है, इंजंक्शन दैट बोरोवर को बोल दिया है कि तू अभी कहीं पे भी कुछ एसेट्स को सेल, फ्रस्ट्रेट, डिस्ट्रॉय, एलिनेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट, अब डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंडेंट भी चुप नहीं बैठते हैं. They will come back कि यार I have paid the money, the bank is etc. whatever claims they have along with the supporting documents, he has to come forward. So the third is a written statement, a written statement by defendant. Written statement का simple meaning है reply. Okay, अब क्या होता है, as a professional I have appeared and I have represented my client where the banks were recovering from him. तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है as a client? Don't you think you're all lost in this case? Answer is no. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना रिप्लाई बना के कोर्ट में दे दूंगा. I'm talking from the defendant point of view. What all can we do to protect the borrower? तुम अनिल अंबानी के लॉयर हो, तुम विजय माल्या के लॉयर हो, ऐसे ही कितने सारे डिफॉल्ट्स होते हैं, सब जेन्युइन बेचारे लोग फंस जाते हैं रीपे करने में, तो उनको तुम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज़, जो बैंक ने दिया है उसको तुम स्टडी करो, उसके कैलकुलेशंस को स्टडी करो, चैलेंज करो, आस्क फॉर काउंटर क्लेम, व्हाट ऑल यू कैन डू, योर डिफेंसेस शुड बी सेट. डिफेंसेस होगा, व्हाट ऑल डिफेंस यू कैन से, डिनायल्स, नहीं लोन नहीं लिया है, ये गलत है, वो गलत है, और डिनायल्स कैन बी देयर, और वी कैन से ऑफ सेट ऑफ काउंटर क्लेम. सो यू विल हैव टू गिव, तो यहाँ पे सेट ऑफ काउंटर क्लेम्स. काउंटर क्लेम इज नथिंग बट अ क्रॉस सूट. One is money against money is a set off. Counter claim is another suit I am filing on them.
फिर बाद में इसका ट्राइब्यूनल विल फिक्स अ डेट कि ठीक है चलो आप लोग दोनों की तरफ से आ गया है, नेक्स्ट पे हम लोग हियरिंग्स करेंगे दोनों का पार्टी का अपॉर्चुनिटी. तो यू कैन आस्क फॉर डिफेंडेंट कैन क्लेम सेट ऑफ. दैट सेट ऑफ विल हैव द इफेक्ट ऑफ अ क्रॉस सूट. क्रॉस सूट मतलब एक दोनों ही सेम स्टैंडिंग पे हो गए, उसने भी मेरे अगेंस्ट क्लेम कर रहा है, मैं भी उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहा हूँ, वो एक क्रॉस सूट हो गया. ना नेक्स्ट आगे फिर क्या होगा झगड़े के बाद में, जो मैंने क्रॉस सूट किया उसके अगेंस्ट वो भी तो कंप्लेन करेगा. सो द एप्लीकेंट शैल हैव अ लिबर्टी टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट टू द काउंटर क्लेम्स बाय द डिफेंडेंट. तो जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसका वो रिप्लाई प्रेजेंट करेगा, जो भी रहेगा इट विल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट्स. Now once that happens, then what will happen? Then in the end the tribunal will pass orders after hearing both the parties. Order could be anything. They can appoint a receiver के भाई ज़्यादातर receiver appoint हो जाता है और recovery हो जाती है. तो in that case also for my client order was passed for recovery, but the objective for the client was to, as long as he prolongs the matter, delays the matter so that he gets a breathing space. He has asked the banks, he has asked the judge to give him a breathing space. Now, where a certificate of recovery, तो हो क्या गया था बहुत टाइम बाद, फिर बाद में ऑर्डर पास आ गया था क्लाइंट के अगेंस्ट, तो एक रिकवरी सर्टिफिकेट बना था उसके अगेंस्ट, रिकवरी सर्टिफिकेट. अब रिकवरी सर्टिफिकेट में लिखा था कि कितना रिकवर करना है, कितना पैसा, कौन सी प्रॉपर्टी, और उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट किया था जिसका नाम था रिकवरी ऑफिसर. फिर हम लोग का झगड़ा इज विद द फिर हम लोग का नेक्स्ट झगड़ा था वॉज विद द रिकवरी ऑफिसर. अब रिकवरी ऑफिसर का बहुत ही खतरनाक रहते हैं ये लोग. सबसे पहली चीज बोरोवर के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करते हैं वो लोग, कैश अकाउंट जो भी पॉसिबल रहता है सब उसको फ्रीज करेंगे. Then they go on for movable property, then they go on for immovable property. So the borrower tries to have as minimum balance in the account as possible, as less valuable stuffs are removed, alienate and everything. So whatever, it's a battle actually. This is a recovery. The tribunal shall direct to recover the money and that the recovery officer distributes the sale proceeds. अब उन लोग ने प्रायोरिटी भी दिया है कि किस किस को पहले पैसे मिलेंगे. सबसे पहले बोल रहे कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ये सब दिया हुआ है. द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रेजर्वेशन वो सब होगा, शैल बी पेड इन फुल. सेल ऑफ एसेट्स, ऑक्शन, उसका पैसा, और फिर बाद में डेट्स ओवर टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फिर बाद में अगर कोई टैक्सेस ड्यू है तो जाएगा. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले प्रायोरिटी मिलेगा. द ट्राइब्यूनल शैल देन सेंड अ कॉपी of the final order and the recovery certificate to both the parties. The recovery officer certificate will be issued by the presiding officer, shall be deemed to be the decree of the court, and the tribunal should always try to dispose of the matter within 180 days. Endeavor. अब ये लोग एक दूसरा not that important, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. तो एवरीथिंग आजकल जो बोल रहे इफ यू रेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो, वेयर दे आर सेइंग वॉट एवर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स इफ डन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इट इज डीम टू बी कंप्लाइड. तो पेटिशंस, रिटर्न स्टेटमेंट्स अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे रहे हो और ऑथेंटिकेट भी कर रहे हो डिजिटल सिग्नेचर से, तो वो एक्सेप्ट हो सकता है. देन दे आर सेइंग कि ट्राइब्यूनल का जो भी कॉपीज है वो वेबसाइट पे हो जाएगा, and that is deemed to be a public notice. It shall maintain its own website. Now after section 20, if you've seen, we are coming to section 21. 21 is appeal. Now DRT has given an order, they've appointed the recovery officer, and now I am stuck, so I go in appeal.
तो अपील का क्या सीन है? एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द DRT मे प्रिफर एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी. नो अपील शैल लाई विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. अगर पार्टीज में आपस में ही कंसेंट ऑर्डर्स हो गए थे, समझौता हो गया था और कोर्ट के पास में दे दिए थे, तो एक मैटर में हम लोग ने भी कंसेंट ऑर्डर्स किया था. तो कंसेंट ऑर्डर्स में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया उनका. दे मेड द कंसेंट टर्म्स, दोनों पार्टी ने साइन करके कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया और कोर्ट ने बोला ठीक है आप लोग मान गए तो हम लोग थप्पा लगा के स्टैम्प कर देते. नाउ आफ्टर पार्टीज के ही बेस पे कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया जैसे पार्टीज ने बोला था, फिर क्या कोई भी पार्टी अपील में जा सकती है? नो. सो नो अपील विल बी अलाउड. Opportunity of being heard will be given, and then the appellate authority DRAT can pass any order confirming, modifying, setting aside any order. Okay. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अपील में गार्डन नहीं है कि पहुंच गए. अपील में जाओगे तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? कम से कम 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू डिटरमाइंड बाय द DRT. तो अगर मेरे को DRT से DRAT के पास में जाना है अपील में, तो मेरे को 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड बाय DRT. अगर DRAT को लगा तो इसको कम कर सकते हैं 25%. 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू शैल बी डिपॉजिटेड. द अपीलेट अथॉरिटी में रिड्यूस द अमाउंट एंड इट शैल नॉट बी लेस देन 25%. नेक्स्ट, प्रोसीजर टू बी फॉलोड. ये भी सिंपल है. So they are not bound by the CPC 1908, but they will be guided by the principles of natural justice. They will have the same powers as that of the civil court for summoning, enforcing evidence, reviewing its decision, dismissing, setting aside any order. वो सबका उसके पास में पावर होगा. Right to legal representation. So the banks and financial institution may authorize any legal practitioner to represent them. तो जनरली बैंक की इन हाउस टीम होती है, उसके अंदर से ही ऑफिसर आएगा, या वो लोग किसी और को भी एंगेज कर सकते हैं. लिमिटेशन पीरियड विल अप्लाई एज फार एज एप्लीकेबल. देन आफ्टर दिस यू सी सेक्शन 19, 20, 21. देन आई टोल्ड यू 25 इंपॉर्टेंट है. 25 मोड्स ऑफ रिकवरी. अब मोड्स ऑफ रिकवरी में क्या है? सभी मेथड से रिकवर करेंगे हम लोग. ये जो रिकवरी ऑफिसर होता है, ये पकड़ो ऐसा है, ये अपना रिकवरी ऑफिसर. रिकवरी ऑफिसर जो रहता है, ही इज नथिंग बट वसूली भाई. वो पैसे रिकवर करके ही जाएगा वो बोरोवर के पास से. उसको कैसे रिकवर करना है सब आता है. आई हैव डेल्ट विद देम, 2 ऑफ देम. दे नो वेरी वेल दैट बोरोवर क्या करते हैं उस टाइम पे. दे आर ऑल प्रिपेयर्ड. सीधा बैंक अकाउंट में जाएंगे, तुम्हारे HDFC ब्रांच में तुम्हारा अकाउंट है, HDFC बैंक के मैनेजर से बात करेंगे, बोलेंगे इसके अकाउंट सब फ्रीज करो. सब अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स फ्रीज्ड. तो दे विल अटैच ऑल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. दे विल टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. दे विल अरेस्ट द डिफेंडेंट. तो अगर डिफेंडेंट सुन नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जाके बाजू की पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट अरेस्ट करवाएंगे उसको. विल अपॉइंट अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट. तो दे कैन अपॉइंट अ पर्सन हु विल मैनेज द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. एनी अदर मोड्स. वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ. अब ये एक्टिवेट कैसे होगा रिकवरी ऑफिसर? कौन इसको एक्टिवेट करेगा कि जा तू? तो DRT जैसे आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज फाउंड आउट दैट द बोरोवर इज लायबल टू पे, ही विल कॉल हिज रिकवरी ऑफिसर एंड से गो एंड रिकवर फ्रॉम हिम. जो है तू जा उसके पास से रिकवरी ले, ये ले तेरा सर्टिफिकेट. अब ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा? जब तक कि वो पूरा पैसा रिकवर ना कर ले. और बीच में DRT ने उसको कुछ बोला, रुक जा भाई, उसको थोड़ा टाइम दे. सो लेट्स सी, यू थिंक एंड टेल मी, कैन द बोरोवर आर्ग्यू विद द रिकवरी ऑफिसर कि नहीं नहीं प्लीज थोड़ा चेंज लेके आओ? कैन द बोरोवर आर्ग्यू विद द रिकवरी ऑफिसर? नो.
तो रिकवरी ऑफिसर इज अ मियर एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, उसके पास में कोई पावर्स नहीं है. मेन कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो will decide. So it shall not be open for the defendant to dispute before the recovery officer the correctness of the amount. He cannot say अरे ये गलत है, compound interest पे लिया, simple amount गलत है. The presiding officer shall have the power to withdraw the certificate or make any amendments thereof. तो presiding officer appoints recovery officer who then goes after the borrower. तो borrower cannot argue with the recovery officer. स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर द सर्टिफिकेट. अब यहां पे क्या हो रहा है? स्टे मतलब एक टाइम, प्लीज रुक जाओ, मोराटोरियम. सो इफ द बोरोवर सेज दैट प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल रीपे इट, वो रिकवरी ऑफिसर को जरा थोड़ी देर के लिए रोक दो. And the banks are also satisfied and the DRT is also satisfied and he is giving an undertaking, unconditional undertaking that he will repay within a certain time, in a reasonable time, and they are satisfied. ऐसे ठीक है, उसको सांस लेने दो, repay कर देगा वो. तो the presiding officer may by an order grant time for payment of the amount. तो ये तो borrower के लिए बहुत ही अच्छी बात. Provided that the defendant makes a down payment of not less than 25%. तो उसको बोलेंगे कम से कम तो अभी 25% हम लोग के सामने दे तो तेरे को लाइफ मिलेगी. ओके. And gives an unconditional undertaking to repay the balance within a reasonable time which is applicable to the bank. Then the recovery officer on receipt of such an order will stay the proceedings. तो रुक जाएगा. Next. इफ द डिफेंडेंट कमिट्स एनी डिफॉल्ट, प्रॉमिस देने के बाद में तोड़ दिया, तो रिकवरी ऑफिसर वापस स्टेप एक्टिवेट हो जाएगा टू रिकवर द मनी. अदर मोड्स ऑफ रिकवरी दिया हुआ है कि और रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है. सो यहां पे क्या है? डेटर इज माई डेटर. तो समझते क्या सीन है? Any person who was required to pay to my debtor, I can ask him get paid to me. So where a certificate has been issued to the recovery officer, the recovery officer may recover the amount by one or any of the modes. If any amount is due from any person to the defendant, the recovery officer may require such person to deduct the amount from the amount of debt due from the defendant. The recovery officer may require any person from whom the money is due to the defendant to pay to the recovery officer. समझते क्या सीन है? अभी let's see if you understood it. So there is the third person, there is the debtor, and there is the recovery officer. Recovery officer. ठीक है. Now the third person is the debtor's debtor. That means he is required to pay 1 lakh. Okay, so he has to pay 1 lakh here. So the recovery officer will issue him a notice, this third person a notice, that don't pay him this 1 lakh. You pay this 1 lakh to me. 1 lakh tu mujhe de de, and it will be deemed that you have paid the debtor. Now, is this third person required to follow and comply with this order? Answer is yes, because it is a decision of the court. So as per section 28, this is the debtor's debtor. Debtor's debtor can be asked by the recovery officer to not pay the debtor and instead to pay this recovery officer.
Clear it na? So the recovery officer may require any person from whom the money is due to the defendant. तो ये अपना defendant है. So to pay to the recovery officer. Next, the recovery officer may by order at any stage require any person to declare an affidavit the particulars of his assets. तो the recovery officer के पास में certain powers है, he can tell कि आप मेरे को writing में दो. Next, this is also important. If you've seen, I marked it as important. See this. This is your section 29. Provisions of Income Tax Act to apply. तो इसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में रिकवरी के थोड़े मेथड्स दिए हैं, शेड्यूल 2 and 3 में वही अप्लाई हो जाएंगे विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन. सेक्शन 29 states that the schedule 2 and 3 of the Income Tax Act 1961 read with the rules shall as far as possible apply with necessary modifications. और इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ पे भी असेसी दिया है, it shall be construed as a reference to defendant. Then appeal against the order of recovery officer. So if any party is aggrieved with the decision of the recovery officer, they can go to the tribunal within a period of 30 days. So if you are unhappy with any of the acts of the recovery officer, you can go and appeal within 30 days. Deposit of the sums due, again when they are saying whenever you go and appeal, you have to give at least 50% of the amount due by the tribunal. So where an appeal is preferred against an order of the recovery officer, such appeal shall not be entertained unless the person has deposited with the tribunal at least 50% of the amount due by the tribunal. Now section 31 is not important. They are saying कि जितने भी pending cases थे before the establishment of the act will be transferred to DRT. So every suit pending before any court before the act will be transferred. So it shall stand transferred to the tribunal. Next, power of the tribunal to issue certificate of recovery in case of a decree or order. Now again they are saying all before the commencement of the act and it has yet not been executed. एक decree आ चुकी थी कोई court के अंदर where a decree was passed by the court before the commencement of the act but has yet not been executed, then the decree holder may apply to the tribunal to get such a order. So now all this is not important because it's all transitional provisions. Priority of the secured to the secured creditors. So section 31B says that the right of the secured creditors to release the secured debts due and payable to them by sale of which secured assets shall have priority over all the other government debts, revenues and taxes. इसका मतलब अगर कोई secured security दिया हुआ है तो secured creditor get priority over the government dues also. Act to have an overriding effect. Now once the matter comes here, then no other act, nothing can apply. The provision of this act shall have an effect notwithstanding anything inconsistent herewith contained in any other law. Doesn't matter what is stated in any other law, even if it is contrary, doesn't matter. The law, the provision of this act will apply. Okay, so this is the lesson roundup. That is it.